Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 17th of February 2021, Wednesday. Inspiration of the day is don't be afraid to give up the good for the great. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Big basket in Tata Cart 68% buy at over rupees 9,000 crore. So Tata Group is all set to acquire the majority stake, that is 68% into the supermarket grocery supplies, that is Big Basket. And as per the sources, this particular deal is going to be finalized at 9,300 to 9,500 crore rupees value. Organized retail sector has a tremendous growth potential in India, and that is why number of companies are actually acquiring the majority stake into the different types of retail stores, whether it is Reliance or Tata. So after Reliance, now Tata Group is going to acquire the 68% of the Big Basket. Currently, this supermarket grocery supplies have online presence as a grocery brand Big Basket and the deal biggest in the online grocery space so far. And this comes about 20 months after this Hari Menon led Bangalore based company has entered the list of Unicorn Club. यूनिकॉर्न जैसा कि हम सभी जानते हैं यूनिकॉर्न सब उन स्टार्टअप्स या उन कंपनीज को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन एटलीस्ट $1 बिलियन का हो. तो अभी 2 महीने पहले ये जो बिग बास्केट या जो सुपरमार्केट ग्रॉसरी ऑनलाइन सप्लाई चेन है, ये अभी यूनिकॉर्न की लिस्ट में 20 महीने पहले ही आई है. एंड दिस पर्टिकुलर डील with Tata values the big basket at 13,500 crore, around $1.8 billion. तो बिग बास्केट को इतने वैल्यूएशन के बेसिस पर इवैल्यूएट किया गया और उसके ही बेसिस वैल्यूएशन के बेसिस पर 68% टाटा ग्रुप इज गोइंग टू एक्वायर और अप्रॉक्सीमेटली आगे आने वाले 4 से 5 वीक्स में दिस पर्टिकुलर डील विल बी फाइनलाइज्ड. जैसे ही ये डील फाइनलाइज होगी, इट विल गिव एग्जिट टू इन्वेस्टर्स लाइक अलीबाबा, आबराज ग्रुप एंड आईएफसी. तो जो भी इन्वेस्टर्स थे, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, दे ऑल विल एग्जिट आफ्टर दिस डील विद टाटा एंड द पार्टीज आर अवेटिंग फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सीसीआई से अप्रूवल का वेट हो रहा है इस पर्टिकुलर डील को लेकर के. एंड इफ यू रिमेंबर, नंबर ऑफ डील्स इन इंडिया हैज रिसेंटली अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ सीसीआई. तो अगर ऐसी कोई भी डील होती है जो कि दो कॉम्पिटिटर आपस में मिलकर डील करते हैं, दो राइवल भी आपस में मिलकर डील करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, एक्विजिशन होते हैं, मर्जर्स होते हैं, दैट for that particular deal companies have to take permission from competition commission of India, that is CCI. क्यों परमिशन लेनी होती है? उन्हें ये बताना होता है, उन्हें ये शोकेस करना होता है कि उनकी ये पर्टिकुलर डील किसी भी तरह से मार्केट में कंपटीशन को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी. इट इज़ नॉट एन अनफेयर डील. दिस पर्टिकुलर डील विल बी बेनिफिशियल फॉर इवेंचुअल कस्टमर और consumer. It is not for distorting the competition. It is not for disturbing the market equilibrium. तो अभी फिलहाल के लिए टाटा की ये जो डील होने वाली है, ये सीसीआई में अप्रूवल के बाद गई हुई. तो डील वैल्यूज बिग बास्केट अप्रॉक्सीमेटली $1.8 crore that we have already discussed. It is one of the largest merger and amalgamation deal in the startup ecosystem till far. मतलब अभी तक के स्टार्टअप्स के हिस्ट्री में हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े वैल्यूएशन की ये पहली बार डील हो रही है, स्पेशली इन केस ऑफ ऑनलाइन रिटेल ग्रॉसरी स्टोर. सो टॉप मैनेजमेंट टू कंटिन्यू ऑन बोर्ड. बेसिकली जो बिग बास्केट, जो सुपरमार्केट ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स के जो टॉप मैनेजमेंट है, दैट विल गेन द प्रोमिनेंट पोजिशन इनटू द टॉप management of this particular merger and amalgamations. Currently, this big basket has these majority or key institutional investor, that is Alibaba, Abraj, Ascent International Finance Corporation and CDC Group, and many of them will exit after deal with Tata. तो हम ये कह सकते हैं टाटा is all set to enter into
online grocery store business which has a tremendous potential into Indian market. And COVID-19 के duration में companies, investors, individuals have realized that the future is all about the e-commerce or online grocery stores. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 2 विद WHO बैकिंग SII2 शिप एस्ट्रा शॉट टू 70 कंट्रीज। जैसा कि हमने पिछली बार कई न्यूज़ में डिस्कस किया है कि इंडिया इज़ कंसीडर्ड एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जो बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल मेडिसिन हैं, कई जेनेरिक ड्रग्स हैं, वो इंडिया में ईजिली और कम कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। तो इंडिया को, और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया को थैंक भी किया है फॉर सप्लाइंग द कोविड-19 वैक्सीन। अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है। आफ्टर पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गॉट इमरजेंसी यूज लाइसेंस EUL फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नाउ ऑल सेट टू एक्सपोर्ट द एस्ट्राजेनेका दैट इज ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कैंडिडेट to around 67 to 70 countries. तो अप्रॉक्सीमेटली 70 देशों में इंडिया की SII दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी इज गोइंग टू सप्लाई द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और इसको लोकली हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज कोविशील्ड। इंडिया में भी ये जो वैक्सीन ड्राइव चल रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, इसमें एस्ट्राजेनेका इज बीइंग यूज्ड अंडर द इमरजेंसी यूज लाइसेंस। तो पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी यूज लाइसेंस दिया, और जिसका एक्सक्लूसिव राइट किसके पास था इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास था। दिस इज द ऑक्सफोर्ड इनिशिएटेड वैक्सीन। इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर कोविशील्ड, and definitely if India is manufacturing any vaccine or generic drug, the cost will be less, or we can say India is able to produce with the minimum input and the maximum output, so the efficiency rate is very high, that's why the per unit cost is very low. तो इसीलिए कई सारे कंट्रीज़ ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि वो इंडिया उनको कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई करे। सो फाइनली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिल गया है फॉर सप्लाई ऑफ वैक्सीन। तो इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 70 देशों को कोविशील्ड वैक्सीन या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सप्लाई करने वाला है। इट्स नोवावैक्स वैक्सीन कैंडिडेट विच इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग विल बी एक्सपोर्ट टू ओवर 90 कंट्रीज। अभी रिसेंटली ब्रिटिश ड्रग रेगुलेटर के ऑफिस से एक टीम आई इंडिया में, जिन्होंने SSI को विजिट किया, एंड दे हैव सीन ऑल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स। एंड आफ्टर द week of audit, sources are saying that team is close to the development and there are high chances that India will supply AstraZeneca vaccine to UK. ऐसा भी नहीं है कि सारे कंट्रीज़ ने इंडिया से की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन या उसकी मैन्युफैक्चरिंग process को accept कर लिया। There are numbers of countries that are actually rejecting the AstraZeneca vaccine, just like South Africa. Earlier, South Africa had rejected the AstraZeneca vaccine, और उसका reason क्या दिया South Africa ने? South Africa says that it did not work against the country-specific coronavirus strains. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के जो strains है वो country और region wise भी vary कर रहे हैं। different countries में, different regions में अलग अलग तरह के strains आ रहे हैं। तो उसको लेकर के साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया था। ऑल्दो इन सब के बावजूद भी अप्रॉक्सीमेटली 70 कंट्रीज़ में इंडिया इज़ गोइंग टू सप्लाई। कुछ कंट्रीज़, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें या कुछ अदर कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर कुछ शिपमेंट रिलेटेड कंस्ट्रेंट हैं जिसको ओवरकम करने के बाद द सप्लाई ऑफ एस्ट्राजेनेका विल बी smooth. So if Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency, that is MHRA, approves the manufacturing process of SII, then India will be ready to, or India may supply its AstraZeneca vaccine to UK. तो UK की अगर अथॉरिटी जो कि MHRA है उसने अप्रूव कर दिया, then India will supply AstraZeneca vaccine to British as well. तो और जैसा कि WHO ने इंडिया में जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो डेफिनेटली इंडिया की जो
वैक्सीन है उसकी ग्लोबल एक्सेस बढ़ेगी, ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, और इंडिया का जो फार्मेसी सेक्टर है स्पेशली जेनरिक ड्रग्स और वैक्सीनेशन के केस में वो और ज़्यादा फ्लॉरिश होगा। एंड दिस इज़ द डेटा रिलीज टिल फरवरी 2020 फॉर कोवैक्सीन, जिसमें इंडिया कितने कितने कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई कर चुका है, वैक्सीन एडमिनिस्टर कर चुका है। दिस इज द डेटा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज प्लेइंग अ वेरी की और द वाइटल रोल इन कर्बिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बिटकॉइन ट्रेड में अट्रैक्ट आईटी जीएसटी। If you remember, recently we have discussed about the increasing value of cryptocurrency, more specifically Bitcoin. तो Bitcoin की जो इस समय वैल्यूएशन बढ़ रहा है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ टेस्ला। अब टेस्ला ने रिसेंट अनाउंसमेंट किया था कि द टेस्ला इज गोइंग टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू बिटकॉइंस ऑन द क्रिप्टोकरेंसी। After this announcement and endorsement by certain individuals or the organization, the value of cryptocurrency, more specifically Bitcoin was increasing। और अभी एक रैली सी आई है क्रिप्टोकरेंसी के केस में। तो नाउ इट इज़ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ऑल्दो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं, इससे पहले भी गवर्नमेंट पर प्रेशर था कि वो बिटकॉइंस को लेकर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस या इनैक्टमेंट्स लाए। Our government was all ready to bring the new piece of legislation against or for Bitcoin or cryptocurrency users. So ahead of cryptocurrency bill, the government is likely to levy both IT and GST on gains and trading of Bitcoins or cryptocurrency. Recently, Government of India is all set to bring the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021। तो उसको पास होने में, उसको इनैक्टमेंट होने में या इन्फोर्समेंट होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। मीन वाइल वॉट गवर्नमेंट इज थिंकिंग, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्योंकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि देयर इज़ अ ट्रेडिंग गोइंग ऑन इन बिटवीन द क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड पर जो बैन था, उस बैन को लिफ्ट कर लिया था। उसके बाद although इंडिया में अभी भी जो डिजिटल करेंसी इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, बट समवेयर कंपनीज आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन बिटकॉइंस। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 को प्रेजेंट करने से पहले, इनएक्ट करने से पहले, गवर्नमेंट इज लाइकली टू लेवी द इनकम टैक्स और जीएसटी ऑन गेन्स एंड ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट एक सर्कुलर रिलीज कर सकती है। उस सर्कुलर में बिटकॉइंस को कैटेगराइज किया जाएगा एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो अप्रॉक्सीमेटली 18% जीएसटी अट्रैक्ट करेगी ऑन अ फी कमीशन कलेक्टेड अंडर दिस सेगमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ पर्सनल इनकम टैक्स टू बी पेड ऑन द अर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेडिंग। तो बिटकॉइंस को फाइनेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18% जीएसटी अट्रैक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, द गेन्स ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइंस will attract the पर्सनल इनकम टैक्स। और सोर्सेस का ये कहना है कि ये जो टैक्स है, आईटी टैक्स या इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर से लेवी होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये हम कह सकते हैं अप्लाई होगा। इट मीन्स इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रेडिंग हुई है, गेन्स हुए हैं, उन सब पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव टू पे द आईटी और जीएसटी। ऐसा नहीं है कि आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, जो फिस्कल ईयर, उससे ही एप्लीकेबल होगा। तो वी कैन से इट मे हैव अ इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। आफ्टर 1 month दिस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर और द फाइनेंशियल ईयर विल बी ओवर। तो काफ़ी जो पिछले 10 से 11 महीने चले गए, निकल गए हैं, उन ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में भी जो भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस की ट्रेडिंग हुई है और जो इन्वेस्टर्स ने गेन किया है, उस गेन पे उनको आईटी और जीएसटी पे करना पड़ेगा। So on taxing a banned item, the official cited the Supreme Court ruling saying that
unregulated cryptocurrencies have not yet been banned and taxation rules are equal for all kind of services and commodities. बिटकॉइन को हम मीन्स गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर पे कैटेगराइज कर रही है। हालांकि बहुत डिटेल निटी एंड ग्रिटीज विल बी इशूड लेटर वंस गवर्नमेंट विल फाइनलाइज दोज सर्कुलर। और सर्कुलर को फाइनलाइज करने से पहले गवर्नमेंट विल डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एजेंसीज हैं जो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स, उनसे डिस्कशन होगा कि व्हाट कुड बी द टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉर बिटकॉइंस और अदर सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर आरबीआई के स्टेक की बात करें हम, या आरबीआई के स्टैंड की बात करें ऑन वर्चुअल करेंसी और द क्रिप्टो करेंसी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को वर्चुअली इंडिया में बैन कर रखा है। वर्चुअली जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, दैट ऑल हैज बीन बैंड एज पर द आरबीआई stand, and RBI has directed that all the entities regulated by it shall not deal in virtual currency or provide services for facilitating any person or entity in dealing with or settling those cryptocurrencies or virtual currencies. So RBI का स्टैंड बहुत क्लियर था इस पे कि RBI अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से, या जो RBI किसी भी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर रही है, उस इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरह की ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करेगी, वर्चुअल करेंसी की ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करेगी, और ना ही वर्चुअल करेंसी के ट्रेडिंग को अलाउ करेगी into the institution that are regulated by or facilitated by RBI. Although सुप्रीम कोर्ट का एक अलग स्टैंड है, गवर्नमेंट भी कुछ फाइन ट्यूनिंग कर रही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रियलाइज हो गया कि इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी से या वर्चुअल करेंसी से या क्रिप्टो करेंसी से एलिनेटेड नहीं रहा जा सकता है। आपको कुछ ना कुछ रूल्स, रेगुलेशन, इनैक्टमेंट या इन्फोर्समेंट लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस जब क्रिप्टो करेंसी को, डिजिटल करेंसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देन इन दैट केस कंट्री लाइक इंडिया दैट ऑल integrated with the global world cannot say no, we are not going to comment on it, we are not going to actually facilitating, or we are not going to ban. Somewhere you have to bring certain sort of regulatory framework, whether you want to totally ban the cryptocurrency or you want to actually facilitate or regulate the circulation or trading of cryptocurrency. तो गवर्नमेंट पर प्रेशर था ही, और गवर्नमेंट was all ready to bring the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2020, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्टो बिल भी बोलते हैं। तो ये इस तरह का बिल लाने के लिए गवर्नमेंट तैयार थी, बट रिसेंटली बिटकॉइन के जैसे वैल्यू बढ़ी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उन ट्रेडिंग्स को या उन पे जीएसटी या इनकम टैक्स इम्पोज करने के लिए गवर्नमेंट एक सर्कुलर रिलीज करने वाली। ऑल्दो सर्कुलर को लेकर भी और इस क्रिप्टो बिल को भी लेकर भी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंटिन्यूएशन कंसल्टेशन में है। जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, गवर्नमेंट is in consultation with all those agencies in order to finalize the operationalization of cryptocurrency on Indian land. And beside the bill will also give the clear definitions to cover the private cryptocurrencies to allay the concern associated with it. It's very easy to say कि cryptocurrency को regulate कर देना चाहिए, enforcement ले आना चाहिए, कोई act लाना चाहिए, but it's very difficult कि एक unregulated currency को जहाँ पर ये भी नहीं पता कहाँ से वो generate हो रही है, कौन generate कर रहा है, किस तरह के transaction हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो चैलेंजिंग इश्यूज हैं जिनको गवर्नमेंट टारगेट करेगी बिफोर ब्रिंगिंग दिस क्रिप्टो करेंसी और द क्रिप्टो बिल। तो इसीलिए कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एजेंसी से गवर्नमेंट इज कंसल्टिंग। और जिस तरह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जा रहा है, बिटकॉइन को लेकर के एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, इंडोर्समेंट बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी का, दैट अलाउइंग द कस्टमर टू पे फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल विद द बिटकॉइंस सून इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन द रैली। तो टेस्ला के बाद
और क्रिप्टो करेंसी के इंडोर्समेंट के बाद जहाँ पर कस्टमर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह के जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इन सारे अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये प्राइस सर्ज आया है बिटकॉइन के केस में, ये प्राइस सर्ज और बढ़े और सस्टेन करे, एंड दिस इज सीन एज अ मूव दैट कुड एक्सपेंड द यूज ऑफ मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी फॉर द रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन। और इस प्राइस सर्ज के बाद गवर्नमेंट पर, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो क्रिप्टो करेंसी, मोर स्पेसिफिकली बिटकॉइन को रेगुलेट करें और उसके लिए फ्रेमवर्क लाएं। सो इंडिया इज ऑल सेट टू ब्रिंग दिस क्रिप्टो बिल और द सर्कुलर in order to regulate the cryptocurrency, in order to levy the GST और income tax on this transaction. अब देख लेते हैं some other news clips. Sparkling Q3 for India INCs. So India INC quarterly net profit reached a record high of rupees 1.64 trillion in the third quarter ended December 31, 2020. तो रिसेंटली Q3 के रिजल्ट आना शुरू हो गए फाइनेंशियल ईयर 2020 को लेकर के। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उसको लेकर के प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। अगर हम मार्केट की बात करें, इंडियन इनकॉर्पोरेशंस की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो जो Q3 के रिजल्ट रहे हैं वो इंडियन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग रहे हैं, ब्राइट रहे हैं, पॉजिटिव रहे। अप्रॉक्सीमेटली 1.64 ट्रिलियन का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है थर्ड क्वार्टर में इंडियन कंपनीज, एंड दैट इज अ वेरी गुड नंबर। द कंबाइंड नेट प्रॉफिट of 3,323 listed companies that have declared the results so far was up 68.6% on year-on-year basis. तो approximately 68% का increase register किया है 3,300 कंपनीज ने, 3,300 लिस्टेड कंपनीज जो हैं, एंड इट इज़ अ गुड नंबर, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जब इंडिया की इकोनॉमी श्रंक कर रही है, देन कंपनीज आर रजिस्टरिंग अ गुड ग्रोथ और द गुड प्रॉफिट दैट इंडिकेट समवॉट रिकवरी और द स्लाइट रिकवरी इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं and results are quite encouraging. In comparison to the earning were up 6 times in the second quarter and 6.5% in the corresponding period of last year. Although last year के comparison में बहुत ज़्यादा increase नहीं है, but जिस तरह से economy fall कर रही थी, fall हो रही थी, उसको देखते हुए results are quite good. और अगर हम रीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द गेन्स इन कॉर्पोरेट अर्निंग केम फ्रॉम द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, हायर प्रोडक्ट प्राइसेस स्पेशली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, एंड अ शार्प डिक्लाइन इनटू द बैंक्स प्रोविजन फॉर बैड लोन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई ने डिसीजन लिया था टू सपोर्ट द स्ट्रेस असेट्स, उसका रिजल्ट हमें इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा है। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन INCs have a sparkling results on Q3. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Nielsen predicts strong FMCG growth in 2021. So as per the Nielsen is a research consultancy firm. January-March quarter could herald a strong comeback for the country's 4.3 trillion fast-moving consumer good industry. तो जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है, अगर हम इसको फाइनेंशियल ईयर के फॉर्म में ना देख करके करंट ईयर या कैलेंडर ईयर के फॉर्म में देखें, तो जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है, दैट क्वार्टर विल work as a comeback for 4.3 trillion FMCG industry in India. So as per the market researcher Nielsen, the rural economy will drive the growth in case of FMCG in India. तो रूरल इकोनॉमी कोविड-19 की इकोनॉमी की सिचुएशन भी अगर आपको याद हो, तो उस समय भी गवर्नमेंट का और बहुत सारी जो मार्केट रिसर्च कंपनीज थी, उनका फोकस रूरल इकोनॉमी पर ही था, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर ऑल वर स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग प्री कोविड सिचुएशन, प्री कोविड टाइम। तो उस समय भी कई सारे एक्सपर्ट्स, स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट का ये कहना था कि नाउ इंडिया शुड फोकस ऑन देयर रूरल इकोनॉमी इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर डिमांड। और इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक का एरा आ गया। नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स पोस्ट कोविड-19
somehow we can say that we are in the transition phase. तो फिर से जो मार्केट रिसर्चर्स हैं उनका ये पॉइंट है, ये ओपिनियन है जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, कि ऐसे सेक्टर्स जो कि प्री कोविड सिचुएशन में भी या प्री कोविड टाइम में भी स्ट्रगल कर रहे थे, जस्ट लाइक रियल स्टेट, FMCG, ऑटोमोबाइल सेक्टर, दे ऑल नाउ फोकस ऑन द रूरल इकोनॉमी. तो जो मार्केट रिसर्चर है नीलसन, उसका भी ये कहना है कि जो FMCG सेक्टर है इंडिया में वो वापस से कम बैक करने वाला है, बट कंपनीज नीड टू फोकस ऑन द रूरल इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू ड्राइव द ग्रोथ. तो अगर हम रीजन वाइज ग्रोथ की बात करें तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 0.8% की ग्रोथ प्रेडिक्ट करी है Q4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 में. टाउन्स, अगर फर्स्ट क्लास टाउन या टियर 1 टाउन्स की बात करें तो 2.70. एंड contrary to all these, the rural economy will drive 14.2% growth on FMCG. And this particular outlook or the prediction is based on the previous performance of these sectors. तो sector specific performance रही है, उसको देखते हुए नीलसन जो market researcher कंपनी है, एजेंसी है, उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में दिस Q1 or we can say January or March quarter is going to be a strong comeback for FMCG. और अगर हम ओवरऑल FMCG ग्रोथ की बात करें तो दिस इज द डेटा यू कैन सी. और अगर आपको याद हो तो Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 FMCG हैज़ रजिस्टर्ड द -19.0% ग्रोथ रेट. हालांकि उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता गया एंड Q4 के रिजल्ट ऐसे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि 7.1% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा FMCG. जिसके बाद जो करंट ईयर है, इस पूरे करंट ईयर में FMCG बहुत अच्छी ग्रोथ रेट को अचीव करेगा अगर कंपनीज इंडिया की रूरल इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा फोकस करती हैं और अपने को स्ट्रैटेजाइज करती हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. इट्स मॉडरेट ग्रोथ और मिड फॉल सेल्स इकोनॉमिक्स. जैसा कि हमने कहा कि Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं. Q4 में हम अभी Q4 मीन्स लास्ट क्वार्टर में हम करंट फाइनेंशियल ईयर के. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, मार्केट रिसर्चर्स हैं, दे ऑल स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मोर स्पेसिफिकली Q3 और Q4 रिजल्ट. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का अपना डिफरेंट ओपिनियन है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के. S&P के अपने हैं, क्रिसल हो गए, बुफा हो गए, SBI रिसर्च, ICRA, सब ने अलग अलग रेटिंग्स दी हैं आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ को लेकर के. After the economy contracted in the 2 consecutive quarters for this fiscal year, all eyes are set on the GDP numbers for the third quarter. तो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के नंबर के बाद से जो प्रेडिक्शंस दिए हैं, जितने भी रिसर्च बेस्ड एजेंसीज उन्होंने जो प्रेडिक्शंस दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, उन पर और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. मे बी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उन नंबर्स को दोबारा रिवाइज करें आफ्टर गेटिंग द Q3 GDP प्रोजेक्शंस. और लास्ट 2 GDPs हम सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है. इवन जो फर्स्ट क्वार्टर रहा था, उस फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट करी थी. इफ़ यू रिमेंबर सेकेंड क्वार्टर में -7.5% का कॉन्ट्रैक्शन था. और दोनों कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन के बाद नाउ इकोनॉमिस्ट आर वेटिंग फॉर Q3 रिजल्ट्स एंड Q4 रिजल्ट्स. एंड आफ्टर दीज Q3 रिजल्ट एंड Q4 रिजल्ट्स और द रिसर्च बेस्ड एजेंसी जस्ट लाइक इंडिया रेटिंग, केयर रेटिंग, क्रिसिल, बुफा, SBI रिसर्च, बालेज, ICRA, all companies or all research agencies may revise their forecast for Indian economy और Indian GDP. तो अलग अलग ओपिनियन है. कुछ कह सकते हैं मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिलेगी Q3 में, कुछ का ये कहना है कि थोड़ा सा मिड फॉल देखने को मिल सकता है. स्टिल द डेटा इज नॉट डिस्क्लोज्ड. ऑल आर वेटिंग फॉर Q3 रिजल्ट्स ऑफ इंडियाज GDP. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. COVID-19 may push NBFC stress assets to rupees 1.8 trillion by March. CRISIL. So the stress assets of finance companies in India are expected to reach approximately 7.5% of their overall assets under the management by the month of March as per the CRISIL. And if you remember, COVID-19 ने बहुत सारे सेक्टर को इम्पैक्ट किया है. कुछ सेक्टर तो वर्स्ट अफेक्ट हुए हैं, जिसमें हमारा एविएशन, टूरिज्म, हमारे जो NBFCs हैं, NBFCs स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज.
रिटेल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। इवन बैंक्स में भी गवर्नमेंट ने जो आरबीआई ने मोराटोरियम पीरियड दिया था उसके बाद ये एंटिसिपेट किया गया था कि इस पीरियड के ख़त्म होते ही जो बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो वही क्रिसिल ने एनबीएफसी के केस में भी कहा है। उनका एज पर द क्रिसिल कोविड-19 की वजह से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, जैसे लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, उनका जो स्ट्रेस असेट्स का रेशियो है, जो स्ट्रेस असेट्स मींस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। एंड दिस इज मेयरली द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और जो सबसे ज़्यादा पेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सेक्टर में, दैट इज़ द रियल स्टेट सेगमेंट। जो रियल स्टेट सेगमेंट है उसमें जो अनसिक्योर्ड लोन है उनकी वजह से सबसे ज़्यादा पेन, जो मैक्सिमम पेन होगा या हम कह सकते हैं मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी ऑन रियल स्टेट सेगमेंट. So the stress assets are the pool of pro forma gross non-performing assets, including accounts that have not been declared NPA in line with the Supreme Court order. If you remember, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कई सारे ऐसे लोन्स हैं जो कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, जिनमें कोविड-19 की वजह से ही रीपेमेंट नहीं आ रहा या कोविड-19 की वजह से ही वो लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं, उन लोन्स को फ़िलहाल के लिए एनपीए की कैटेगरी में डिक्लेयर ना किया जाए। तो यहाँ पर जो क्रिसिल ने स्ट्रेस असेट्स को कैलकुलेट किया है, तो क्रिसिल ने उन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को भी इंक्लूड किया है जिनको फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए में क्लासिफाई करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना टेक था उस पर। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये एक्चुअली एनपीए नहीं है, ये एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे हैं, एक्सिजेंसीज रही, उसकी वजह से दीज पर्टिकुलर लोन्स और द borrowers are not able to repay their installments. So these loans should not be categorized as NPA. Why? Because once the economy will revive, maybe these startups, these loans, these companies will turn up into the viable business or the परफॉर्मिंग असेट्स और द परफॉर्मिंग लोन। हालांकि क्रिसिल ने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, स्ट्रेस एसेट्स की कैलकुलेशन के लिए उन सारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी इंक्लूड किया है, उन अकाउंट्स को भी इंक्लूड किया है जिनको फिलहाल के लिए अभी एनपीए डिक्लेयर नहीं किया गया है। और रिसेंटली अगर आपको याद हो तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, एफएसआर, जनवरी में, उसने भी एस्टिमेट किया था कि जो ग्रॉस बैड लोन्स हैं बैंक का वो अप्रॉक्सीमेटली 13.5% तक बढ़ सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। जो पिछले साल सितंबर के मंथ में 7.5% था, इट मे इंक्रीज अप टू 13.5%। तो बैंकिंग सेक्टर में भी 13.5% तक के एनपीए उनका प्रोजेक्शन है। आरबीआई खुद ही प्रोजेक्शन कर रहा है। जो इंटरनेशनल रिसर्च बेस्ड कंपनीज हैं, जो रिसर्च कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग द हाई अमाउंट ऑफ एनपीएस और द स्ट्रेस असेट्स इन केस ऑफ एनबीएफसीज एज वेल। और इवन अगर एक्सट्रीम केस की बात करें तो द पेन कुड बी हायर विद द ग्रॉस एनपीए ऑफ 14.8% इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021। तो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 15% तक जा सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री का एनपीए, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस का सिनेरियो बना रहा, इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाई उस पेस से जिस पेस से एंटिसिपेट किया जा रहा है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो एनपीए वो 15% तक इंक्रीज हो सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए क्रिसिल रेटिंग, जो क्रिसिल की जो रेटिंग एजेंसी है, उसका ये भी कहना है कि ऑल दो गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स हैं जो पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि वन टाइम कोविड-19 रीस्ट्रक्चरिंग विंडो, एमएसएमई रेजिम स्कीम, ये इन स्कीम्स का कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा इन स्ट्रेस असेट्स पर, ग्रॉस एनपीएस पर, बट ये इम्पैक्ट इतना नहीं होगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज ला पाए इनटू दिस इंक्रीजिंग एनपीए। तो आगे आने वाले एक टाइम इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर के लिए और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी आगे आने वाला टाइम इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर इंडियन इकोनॉमी फॉर मैनेजिंग दीज एनपीएस, क्योंकि बहुत सारे एनपीए प्री कोविड टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट कोविड ने, पैंडेमिक ने उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और ज़्यादा वर्स्ट किया है कि अगर उनके रिवाइवल के चांसेस थे भी तो वो अब उनको रिवाइव कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है।
and this is the bifurcation of different assets estimates home finance, vehicle finance, MSMEs, unsecured loans and real estate. और जैसा कि हमने डिस्कस किया रियल स्टेट के केस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस असेट्स का परसेंटेज है दैट इज 15 to 20%, and the least is home finance that is 1 to 2% only. तो अब आगे ये फ्यूचर के देखने की बात है कि गवर्नमेंट, आरबीआई और अदर फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन कैसे इन एनपीएस को टैकल करते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने, हमने कल भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने कई सारे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट भी कर दिया है, तो उसका मेन जो रीज़न है दैट इज़ टू टैकल द एनपीए. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.